Hello student, now I am going to start the next concept of this chapter, that is the concepts of primary, secondary, tertiary alkyl halide. Other word में concept of 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon. So this is a example. Suppose that this is a C. मान लो suppose that यहाँ पर hydrogen atom is Br, that is the H. This is a hydrogen atom Br. C, this is a Br, H, Br, H. अब कौन सा कार्बन कौन सा डिग्री है, इस कार्बन को पीछे देखिए आप, इस कार्बन है, इस कार्बन के बगल में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, दिस इज अ 1 डिग्री. इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विथ कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री. इफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन, that is called 2 degree, and if attached with 3 carbon, that is called 3 degree. If attached with 4 carbon, that is called 4 degree. So this carbon directly attached with 1 carbon, therefore this carbon is the primary carbon and hydrogen is the primary hydrogen, and this carbon directly attached with 2 carbon, that is called secondary, and this carbon directly attached with 1, 2, 3 carbon, that is called 3 degree, and this carbon directly attached with 2 carbon, hence this is a 2 degree. So this is a concept of primary, secondary and tertiary alkyl halide. So with the help of this concept you can easily identify the primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. Suppose that this is a CBr. अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4. 1 valency satisfied by bromine atom. Suppose the second valency satisfied by carbon, third valency also satisfied by carbon, and fourth valency also satisfied by carbon. तो इन कार्बन के बगल में कितने कार्बन हैं 3, इसलिए कौन सा डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड है, इट इज अ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड. एंड दिस इज अ सपोज दैट CH3, CH, Br एंड CH3. इस कार्बन के बगल में कितने कार्बन हैं, 1 carbon and 2 carbon directly attached with this carbon. This is a 2 degree alkyl halide. And suppose that CH3, CH2, Br. अब इस कार्बन पर, इस जहां पर हाइड्रोजन एटम अटैच है उसके बगल में आप देखेंगे हाइड्रोजन एटम अटैच विद दिस कार्बन, एंड इस कार्बन के बगल में सिर्फ एक कार्बन है, 1 कार्बन, इसलिए ए एल्किल हैलाइड कौन सा हो जाएगा, दैट इज अ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड. दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary alkyl halide. अब next concept of gem and vicinal dihalide. So how you identify the gem and vicinal dihalide and what are the difference between the gem and vicinal dihalide. So concepts of gem and vicinal dihalide. So this is a alkyl halide, and this is a, suppose that hydrogen atom chlorine, and this is hydrogen atom chlorine, and this is a alkyl halide. Here is the chlorine atom and here is the chlorine atom. So if 2 hydrogen atom attach with the same carbon, that is called gem. So this is a 2 hydrogen atom attached with same carbon, that is called gem dihalide. And if 2 hydrogen atom attach with the adjacent carbon, that is called vicinal dihalide. That is called vicinal dihalide. So very simple concept. If 2 hydrogen atom attach with same carbon, that is called gem dihalide. If 2 hydrogen atom attach with adjacent carbon, that is called vicinal dihalide. So these are all are the general concept related to the chapter haloalkane and haloarine. Now we will explain the general method of preparation of haloalkanes and haloarine. The first we have discussed the method of preparation of haloalkane. तो अब हेडिंग आप डालेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन of haloalkane. General methods
of preparation of haloalkanes. So there are many methods. The number one method from एल्केन से आप कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ मीन्स हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर mechanism आर free radical mechanism that is called free radical mechanism। तो वेरी सिंपल रिएक्शन है, जैसे सपोज दैट इज CH4 treated with chlorine in the presence of either UV light या diffuse sunlight, UV light या diffuse sunlight। तो one hydrogen atom replaced by one chlorine atom, therefore CH3Cl plus HCl। Suppose that then CH3Cl then react with chlorine in the presence of UV light, the second hydrogen atom replaced by chlorine। So this is a type of substitution reaction, CH2Cl2 plus HCl। Suppose that this CH2Cl2 then again react with chlorine in the presence of UV light, तो third hydrogen replaced by chlorine atom, the CHCl3 plus HCl। फिर then react with chlorine in the presence of UV light, the CCl4 plus HCl। And it means in this reaction all the four hydrogen atom replaced by chlorine atom। So this is a example of halogenation reaction या substitution reaction, and their reactive intermediate are always free radicals। Their mechanism are free radical mechanism। And the important point of this reaction, जो rate of halogenation होगा, rate of halogenation सबसे फास्ट 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, 3 डिग्री कार्बन का, देन 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, देन 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे फास्ट 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन, देन 1 डिग्री कार्बन। एंड जो एल्किल हाइलाइड बनेगा और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हाइलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हाइलाइड्स, stability of alkyl halide, most stable alkyl halide is the tertiary alkyl halide, and then 2 degree alkyl halide, and then 1 degree alkyl halide। the most stable alkyl halide 3 degree alkyl halide पूछा जाएगा क्यों 3 degree alkyl halide ज्यादा स्टेबल हो है। तो 3 degree जब मोस्ट स्टेबल होने का मतलब कि ड्यू टू ग्रेटर stability of 3 degree carbocation form after ionization। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो क्लास 11 एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तभी एक चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, क्लास 11 हम डिटेल नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, 1 डिग्री 2 डिग्री, आईपीएसी नेमिंग, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ये सब क्लास 11 की जो दो इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसी पर पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता था, दैट इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। एंड देन स्टेबल कौन होता था, दैट इज CH3 ट्वाइस 2 डिग्री कार्बन, देन CH3 CH2 एंड देन दैट इज अ CH3 प्लस। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज अ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे फास्ट टर्शियरी कार्बन में होगा,
और सबसे स्लो जो होगा दैट इज इक्वल 1 डिग्री कार्बन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वाई और क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आर मोर स्टेबल ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ 3 degree alkyl halide. Suppose that this is a 3 degree alkyl halide. This is a 3 degree alkyl halide. This is a 3 degree alkyl halide. After dissociation, after ionization, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन कार्बन, तो पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द ब्रोमीन साइड. The shared electron shifted towards the bromine side, so we get CH3 प्लस प्लस Br माइनस. तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में कितने कार्बन है? 3 कार्बन. इसलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन है और विच इज अ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. तो दिस इज अ रीजन कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड इज अ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको आप लोग देखिए. देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा. इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा कि राइट डाउन द ओनली मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ फॉलोइंग एल्केन. क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? राइट डाउन द ओनली मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट आप किसे कहेंगे? मेजर प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट. राइट डाउन द ओनली मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ जैसे नंबर 1 सपोज दैट इज अ प्रोपेन. ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन जैसे सपोज दैट आइसोब्यूटेन. तो पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आंसर लिखेंगे. दिस इज अ प्रोपेन CH3 CH2 CH3. रिएक्टिविटी किससे? क्लोरीन एंड द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन रिप्लेस करने का. तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज 1 डिग्री कार्बन. ये कार्बन कौन सा है? दिस इज 2 डिग्री कार्बन. क्यों 2 डिग्री कार्बन? क्योंकि इसके बगल में 2 कार्बन है. और ये कौन सा कार्बन है? दिस इज 1 डिग्री. और जो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, रेट ऑफ क्लोरीनेशन सबसे फास्ट कौन सा होगा? 2 डिग्री में. रेट ऑफ क्लोरीनेशन फास्टेस्ट इन 2 डिग्री, मतलब ये वाला हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा. देन किस में होगा बताओ? 1 डिग्री. तो इससे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा ये भी आप आसानी से बना देंगे. तो सबसे पहले आप ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, दैट इज वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन एटम. तो वी गेट CH3 CH. यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ोगे CH3 अब प्लस जो 1 हाइड्रोजन हटा वो सेकेंड क्लोरीन से कंबाइन कर लिया, दैट इज कॉल्ड HCl. तो दिस इज अ फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मतलब सेकेंड डिग्री का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम. अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? या इधर ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे या तो ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे. तो सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट इज मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ये CH3 CH2 Cl. तो 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन एटम, तो टू फॉर्म CH3 CH2 Cl अब प्लस दैट इज HCl. तो ये 2 आइसोमर्स बन रहे हैं. अभी आप देखेंगे ये वाला जो आइसोमर्स है दिस इज 2 डिग्री आइसोमर्स. 2 डिग्री क्यों 2 डिग्री? इस कार्बन के बगल में 2 कार्बन है. और ये वाला कौन सा डिग्री है? दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री. तो अभी हम बताए थे कि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा. स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री होगा.